पंकज रज परिमार्जितेषु चेतस्सु दर्पणतला मलतांगतेषु शब्दार्थ संपदोदारतरा स्फुरन्ति विघ्नच्छिदेस्तु भगवान् स गणाधिनाथः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। Respected Professor P.N. Jhaji, Director, School of Management Science, Professor Ravindra ji, who has come from South Africa to address this august gathering, Professor, the convener of the conference, Avinash ji, the faculties of these prestigious institutions, and the dear participants. In the welcome address, Professor Jha appreciated Sanskrit language. I happen to be the teacher of Sanskrit, a student of Sanskrit, and especially the Sanskrit literature. So I initially thought to address the gathering in Sanskrit itself. But I don't think most of you would be able to understand the Sanskrit language. But Sanskrit happens to be the most scientific and the most pleasant language of this country, not only India but the entire world. संस्कृत भाषा न केवलं भारतवर्षस्य अपितु संपूर्णस्यापि विश्वस्य अत्यन्तं सौष्ठवपूर्णा भाषा वर्तते। अवतेव संस्कृतेनापि वक्तुं शक्यते अस्मिन्नपि विषये यश्च विषयः अत्र निर्धारितः। But the proceedings are going on in English, so I will better try to make remarks in English, and if feel discomfort, then I will switch over to Hindi. देखिए how this particular practice came into the mainstream, that is Indian knowledge system. The seed of this particular branch of study was actually sown in the Banaras Hindu University in 2015, when the centennial year of the Banaras Hindu University was celebrated. At the time, the education minister of the country gave Banaras Hindu University 25 crore rupees to establish an independent center known as Bharat Adhyayan Kendra. And I happen to be the first coordinator of that center because I am a student of Sanskrit. So the university decided to appoint a Sanskrit teacher as a coordinator of that particular center. Why? After 100 years of a large journey of the university, which is known as a capital of knowledge all over the world, जिसको सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता है, 100 वर्ष बाद क्या जरूरत पड़ी? So there was a need of the coordination to bring the study and research of the Banaras University based on the Indian knowledge system. And that was the main aim or the goal of the founder, Bharat Ratna Pandit Mahamna Madan Mohan Malviya ji. And the university deviated from its goal. Number of subjects are taught, but they are not at all concentrating on their roots, which are actually available in our traditional knowledge system. So for that, this particular center was constituted. What the center did during his last journey of about 5 years, 2 years were succumbed to Corona, so actual journey is 3.5 years, I think. We have developed an independent course of MA in Hindu Studies. That is the only course in the entire country introduced first time by Bharat Adhyayan Kendra, Banaras Hindu University. And you will be happy to know that most of the central universities in many of the state universities have accepted this course
in their main system. And it is introduced, even the UGC has declared a national NET and JRF scholarship for this. And NTA used to conduct the examination for the recruitment of students in this course in the Banaras Hindu University. What is actual nature of this particular course? So far as the sustainable well-being is concerned, you see, the Indian knowledge was created long back, about 2,000, 3,000 years back. We cannot count the actual time and the date. But how it was created? There are three stages. The first stage is the lok, the public. Second stage is the Shastra or the Ved. And the third stage is the individual or your own personal feeling. So we kept high the lok. Then we prepared Shastras based on the lok. And then we applied those Shastras for the welfare of the humanity. Loko Vedas Tathadhyatmam Pramanam Trividam Smritam. This is the actual process of the constitution of the Indian knowledge system. What the ancient rishis did, they used to go to the public, they intermingle with the public, they have discourses with the public, they used to move all around in the nation, have discussions with the people, learn their actual problems, and then they sit together and discuss over those problems and try to find out the universal solution. But after having a universal solution, after proper dialogue, after proper discussion, जिसको हम कहते हैं वाद परंपरा, we were having a वाद परंपरा. ऐसा नहीं है कि something has been imposed by an individual on the public and you will have to follow, you have no other option. हमारे यहाँ वाद की परंपरा थी, डिस्कशन की परंपरा थी, उससे ज्ञान परंपरा हमारी विकसित हुई. So they used to sit together and discuss over those problems, and when they get the solution, they apply it on the public. Before application, that solution was actually evaluated. So we were having Tattva Mimamsa, how to look over the entire scenario all around you. Then we were having the Pramana Mimamsa, and then we were having the Vyavahara Mimamsa. It is not that these theories and these principles were kept close into the book. They were brought into the practice in the form of our daily life. The entire routine, the charya, dincharya is fixed in our ancient system. And it is because of this that our body was actually fit and we were able to create such a huge knowledge for the welfare of the entire humanity. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. This is the actual aim of the entire Indian knowledge system. What was our view towards the lok or the physical world? There are two words. First, one is the physical world. एक तो भौतिक संसार है, पांच भौतिक संसार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा. और दूसरा संसार है हमारा आंतरिक संसार, जो कि मनुष्य के अंदर बसता है, जीव के अंदर बसता है. दो ही सृष्टि के पदार्थ हैं, एक तो स्थावर और दूसरा जंगम. स्थावर उसको कहा जाता है जिसकी क्रिया उसके अधीन नहीं होती. यदि हम किसी स्थावर वस्तु को रख दें, निर्जीव वस्तु को रख दें, तो उसकी क्रिया उसके अधीन नहीं होती. लेकिन हमारी क्रिया हमारे अधीन है, और क्रिया को हमेशा हमारे यहाँ अनुमान का विषय माना गया है. क्रिया कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होती, ये शास्त्रों का नियम है. तो स्थावर सृष्टि के विषय में, द फिजिकल वर्ल्ड विच इज विजिबल ऑल अराउंड,
we talk about the Ishwar. ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति. ये ऋषिकेश योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का वचन है. लेकिन हमने ईश्वर को अलौकिक नहीं माना. We never believed that the God lives beyond this universe. We always believed that God lives within the universe and it is visible to us. In what way? That is known as अष्टमूर्ति. अष्टमूर्ति शिव की हमने कल्पना की. या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम. दिस इज कालिदास. डॉक्टर रविंद्र कोटेड मेंशन्ड कालिदास. या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री ये द्वे कालम विदत्त श्रुति विषय गुणाया स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरितिया प्राणिन प्राणवंत प्रत्यक्षापि प्रपन्नांस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः. In these 8 forms the God is visible. God is not invisible. It is visible to us. तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य और चंद्रमा, and the last one is the चेतना of the individual, जिसको यजमान मूर्ति कहा गया हमारे यहां. In this way the God is visible everywhere. जब आप इनमें देवत्व की परिकल्पना करेंगे तो चाहे विज्ञान हो चाहे तकनीकी हो, जिसने हमारे जीवन को आसान बनाया, उसके माध्यम से हम कभी भी इसके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रखेंगे. We will never discard it. हम इसको कभी भी विनाश की ओर नहीं ले जाएंगे. तो ये हमारी जीवन दृष्टि थी. हमारा आधार था यज्ञ. यज्ञ से तात्पर्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है गीता में, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः. दिस इज द साइकिल विच इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट many years, or we can't even define when it started. So annad bhavanti bhutani parjanyat anna sambhavah और यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः. यही है यज्ञ जो सृष्टि में चला आ रहा है. बनी कैसे सृष्टि? तो वेदों में कहा गया है ऋतंच सत्यंचाभिधात तपसः अध्यजायत. 2 चीजें उत्पन्न हुई थी. एक तो ऋत उत्पन्न हुआ था और दूसरा सत्य उत्पन्न हुआ था. ऋत क्या है? द यूनिवर्सल साइकिल. ऑन द एट द ईस्ट एट द राइट टाइम इन द राइट डायरेक्शन द सन यूज्ड टू राइज. किसने फिक्स किया इसको? एंड ऑन द वेस्ट इन द इवनिंग इट यूज्ड टू सेट. This is the entire cycle which is going on. The second thing is अग्नि सोमात्मकम जगत. एक है औषधि का साधन और दूसरा है एनर्जी का साधन. एनर्जी का अर्थ है ग्रोथ, विच ब्रिंग्स द ग्रोथ. और दूसरा है जो उसके अंदर रस लाता है, जो उसको उसमें स्वाद पैदा करता है, उसको आपके आस्वाद का विषय बनाता है, रसनीय बनाता है. तो ये 2 हमारे यहाँ काल के नियामक है, वो है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा. चंद्रमा को हमारे औषधिपति माना गया है. तो ये हमारा जो ऋतु चक्र है, ये ऋतु चक्र, अन्न को हम खाते हैं, अन्न पैदा होता है पर्जन्य से. पर्जन्य का अर्थ है जो आसमान से होने वाली वृष्टि. पर्जन्य बनता किससे है? तो गांव देहात में पुराने जमाने में वैशाख के महीने में यज्ञ हुआ करते थे. उस यज्ञों में अनेक प्रकार की औषधियों की आहुति दी जाती थी. उस आहुति से जो धूम तैयार होता था वही पर्जन्य के रूप में ग्रीष्म के बाद आने वाली वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर रस के रूप में बरसता था. वही पर्जन्य औषधियों को पुष्ट करता था. उन औषधियों को हम ग्रहण करते हैं जिससे हमारा अस्तित्व बनता है. दिस इज द एक्चुअल यज्ञ विच इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट indefinite period in the entire universe. ये है हमारे यहाँ यज्ञ की परिकल्पना.
इन सब मूल भावनाओं से हम अलग हुए। इसका परिणाम था कि हमारी दृष्टि भौतिकता की ओर गई। Dr. Ravindra started from the economic situation, then he came to the science and technology, and ultimately he ended his talk in the values. So values happen to be the most important part of the life. If the individual is saved, or he right path, he moves on the right path, the entire system will all automatically be under our control. So these are the things which are already existing in our ancient knowledge system, and they are actually very important for the well-being of the individual. काशी को कहा जाता है मोक्ष की नगरी। तो कभी आप लोगों ने सोचा कि वाई इट इज नोन एज द सिटी ऑफ सॉल्वेशन, यहीं पर मोक्ष मिलता है। अयोध्या, मथुरा, माया, ये सब नगरियां हैं हमारे यहाँ, मोक्ष नगरियां हैं। लेकिन काशी को माना जाता है कि काश्याम मरणान मुक्ति, मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अघानी कर, जहाँ रह शंभु भवानी, सो काशी से ही कसन। ये हमारे यहाँ कहावत है। देखिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज, दैट इज द फिजिकल बॉडी विच इज विजिबल, दूसरा है अंतःकरण, द इंटरनल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार। लेकिन एक और शरीर है, उसको कहा जाता है लिंग शरीर, और उस लिंग शरीर से मुक्ति यदि मिलती है तो वो काशी में ही मिलती है। अब आपके मन में प्रश्न खड़ा हो रहा है कि व्हाट इज दिस एक्चुअली लिंग शरीर बीन्स? इसी को कहते हैं वासना शरीर। यदि चेतना में सांसारिक वस्तुओं के प्रति वासना आपकी बनी रहेगी तो आपको पुनः उस वासना को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो लिंग शरीर से जो मुक्ति मिलती है वो मुक्ति आपको काशी में ही मिलती है। काश्याम मरणान मुक्ति है, काश्याम संस्कारादपि मुक्ति है। ये दोनों बात हमारे यहाँ मानी जाती हैं। इसीलिए विश्व के लोग संसार में सोचते हैं कि हम कम से कम काशी पहुंच जाएं। तो ये 3 अवधारणाएं थी हमारे यहाँ। एक बात और ध्यान रखिएगा कि आचार्य कौटिल्य ने कहा है कि आप मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं कि अर्थ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द अर्थ? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, दिस आर द 4 मेन वैल्यूज। धर्म, अर्थ और काम। मोक्ष को हम पाने के लिए प्रयास नहीं करते, वो अपने आप मिलता है। लेकिन कब? जब अर्थ और काम धर्म पर आधारित हो। You will automatically get it, the 4th one. For that you will not have to make the extra efforts. इसीलिए हमारे यहाँ 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ को अन्य 3 का आधार बनाया गया था। गृहस्थ happens to be the ground or the base of all the 3. तो ब्रह्मचर्य में हम करते क्या थे? ब्रह्मचर्य में हम अपनी सारी शक्ति, सारे सामर्थ्य को इंडिविजुअल तक रखते थे। उसमें हम पब्लिक लाइफ में नहीं आते थे। डेवलपिंग द इंडिविजुअल सोल, इंडिविजुअल नॉलेज। 3 शक्तियां होती है, जैसा कि मालवीय जी का श्लोक अभी हम लोग स्मरण कर रहे थे। सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्या देशभक्त्यात्मत्यागेन सम्मानार्हः सदा भव। एक होती है शारीरिक शक्ति, एक होती है मानसिक शक्ति और एक होती है बौद्धिक शक्ति। तो शारीरिक शक्ति अन्न की शुद्धता से बनती है, और शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न का जो सूक्ष्मतम अंश होता है उससे मनुष्य का मन बनता है। यह शास्त्र का नियम, और विज्ञान भी इसको सिद्ध कर सकता है। यदि विज्ञान की दृष्टि से आप देखिए, व्हेन द साइंस कैन प्रूव इट, कि अन्न का जो सूक्ष्मतम अंश होता है उसकी जो सात्विकता होती है उससे मनुष्य का मन बनता है। इसलिए अन्न की शुद्धि पर हमारे यहाँ सबसे अधिक बल दिया गया। मन की शुद्धि के लिए अपेक्षित है उपासना, और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपेक्षित है नॉलेज। So these are the 3 energies which are to be protected, which are to be promoted by each and every individual. Keep your body fit, keep your man or the soul fit, and keep your mind fit.
इसी के लिए हमारे यहाँ बड़ी प्रसिद्ध विद्या थी योग विद्या। योग का अर्थ क्या है? योग शब्द, इफ यू हैव द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द योग, योग मीन्स कॉम्बिनेशन, जोड़ना, 2 + 2 = 4. But so far as the body is concerned, what does actually the yoga means? योग का अर्थ होता है the integrity of the soul, integrity of the body. यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है हमारे यहाँ। यदि हम ब्रह्मांड की इज्जत करेंगे तो ब्रह्मांड इस पिंड की इज्जत करेगा, और यदि हम ब्रह्मांड की उपेक्षा करेंगे तो ब्रह्मांड इस पिंड की भी उपेक्षा करना शुरू कर देगा, तो विनाश सुनिश्चित है। ये बात कैसे बनती है? क्योंकि हमारे पंच कर्मेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, और मन है, बुद्धि है, अहंकार है और आत्मा है। इसको भगवान ने चेतना से जोड़ दिया। तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्र, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, और अंत में उससे जुड़ी हुई है चेतना। यही जो तत्व है, इन्हीं तत्वों से ये हमारी काया बनी हुई है। तो इंटीग्रिटी बिटवीन दीज एलिमेंट्स विच एक्चुअली बिलोंग टू योर बॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर है, उनका इंटीग्रेशन, उनका कोऑर्डिनेशन, उसी को योग कहते हैं। वो कब बनेगा? जब आप एक सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत कैसे करें? तो उसके लिए हमारे यहां बड़ा ही व्यापक शब्द है, यतोभ्युदयो निश्रेयस हेतु सधर्मः। धर्म को हम किसी संप्रदाय से जोड़कर नहीं मानते। धर्म का सीधा अर्थ है कि ऐसा अभ्युदय जो हमको निश्रेयस की ओर ले जाए। हमने कभी भी भौतिक संसार की उपेक्षा नहीं की। सुखमय सर्वोत्तम अन्न का हमने सेवन किया, सर्वोत्तम प्रकृति का हमने सेवन किया, सर्वोत्तम विचार हमारे थे। हमने कभी भी इस शरीर की उपेक्षा नहीं की, क्योंकि हमने माना कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो भौतिकता से हम कभी भागे नहीं, भौतिकता से हमने कभी छोड़ा नहीं। लेकिन उस भौतिकता की दृष्टि कहां थी? उस भौतिकता की दृष्टि थी उस निश्रेयस की सिद्धि पर। यदि निश्रेयस की सिद्धि पर ध्यान रखते हुए हम भौतिकता को अर्जित करते हैं तो भौतिकता कभी भी अपने रास्ते से भटकेगी नहीं। यही बात ईशावास्योपनिषद में ऋषि कहते हैं, विद्यांच अविद्यांच यस्तद् वेदो भयं सह अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विद्या एंड अविद्या? अविद्या का अर्थ है ये जो सांसारिक विद्याएं हैं, जैसे इवन द मैनेजमेंट इज अविद्या, बट इन अविद्या अ इज नॉट फॉर नेगेशन, वो नेगेशन के लिए नहीं है। वहां पर अ जो है वो सिमिलरिटी के अर्थ में है। तत्सादृश्यम तदन्यत्वम तदल्पत्वम विरोधिता अप्राशस्त्यम अभावश्च नयर्था षट प्रकीर्तिता। शास्त्र में कहा गया, जैसा कि झा जी ने कहा कि नंबर ऑफ मीनिंग्स आर देयर। ब्राह्मी तो भारती भाषा, गीर वाग वाणी सरस्वती। सरस्वती के इतने नाम है, ब्राह्मी है, भारती है, भाषा है, गीय है, वाणी है, सरस्वती है। लेकिन सब अपनी जगह फिट बैठते हैं। कहाँ सरस्वती यूज करेंगे, कहाँ ब्राह्मी यूज करेंगे, कहाँ गी ही यूज करेंगे, ये निश्चित है। हर जगह हर शब्द हमारा नहीं बैठता। भगवान शंकर के हजारों नाम हैं, लेकिन कहाँ आप उनको पिनाकी कहेंगे? सब बैठेंगे। कहाँ आप उनको कपाली कहेंगे? कपाली का अर्थ क्या है? कपाल धारण की हो। पिनाकी का अर्थ क्या है? जो वीर है, योद्धा है। तो ये हमारे यहाँ साहित्य में ये सब विषय पढ़ाए जाते हैं। तो ये हमारी दृष्टि थी। हम अविद्या का अर्थ है विद्या सदृश। जो सांसारिक वस्तुएं हैं, उन सांसारिक वस्तुओं को हमने विद्या सदृश माना, उसको कभी भी उपेक्षा का विषय हमने नहीं माना। तो उसका परिणाम ये होता है कि ये जो मर्त्य लोक है, मृत्यु का अर्थ क्या है? ये जो मर्त्य लोक है, मर्त्य इसलिए है कि ये काल से बंधा हुआ है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है उसको जाना है। तो हम काल से बंधे हैं। काल किसका? जन्म और मृत्यु का।
तो जन्म तो हम जानते हैं, लेकिन मृत्यु हम नहीं जानते, लेकिन वो निश्चित है, उसका आना निश्चित है। इसीलिए ये मर्त्य लोक है। तो मर्त्य लोक को पार करने के लिए अविद्या का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन इस अविद्या को विद्या सदृश मान के, नेगेशन ऑफ द विद्या मानकर नहीं। जिसने नेगेशन ऑफ द विद्या मानकर इस अविद्या का सेवन किया, वह व्यक्ति निश्चित ही इस संसार की माया से बाहर नहीं निकल पाया। इसी बात को दूसरे मंत्र में ऋषि कहते हैं, संभूतिंच विनाशंच यस्तद वेदो भयम सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा। ये विनाश, ये संसार कैसा है? ये एटर्नल नहीं है, दिस इज नॉट एटर्नल, वन और द अदर टाइम इट इज गोइंग टू एंड। तो ये जो संसार है ये विनाशी संसार है, लेकिन इस विनाशी संसार की इज्जत हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि यही हमें उस परम तत्व तक पहुंचाने का साधन बनता है, यही हमारे लिए साधन बनता है। इसलिए ये बातें हमारी परंपरा में रही हैं। नवरात्र आ रहा है, वासंतिक नवरात्र, इसके बाद आएगा शारदीय नवरात्र। तो क्यों इन दोनों को मनाया जाता है? क्योंकि दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ द सीजन। और इस ट्रांजिशनल पीरियड में इफ यू कीप योर बॉडी बैलेंस्ड बाय ईटिंग हेल्थी फूड और बाय कीपिंग वर्शिप, शक्ति तत्व जिसको कहते हैं, भगवती की आराधना यदि आप करते हैं, तो इसमें आप भगवती के ऊपर कृपा नहीं करते, अपने ऊपर कृपा करते हैं, अपने शरीर को ठीक रखते हैं। और इस ट्रांजिशनल पीरियड में जिसने अपने शरीर को ठीक रख लिया, वो ऋतु चक्र के आघात से बच जाता है। यही स्थिति शारदीय नवरात्र में होती है, क्योंकि हम फिर गर्मी से बढ़ते हैं किधर? शीत की तरफ। तो हमने इन त्योहारों को बनाया, इन त्योहारों की कल्पना की, क्यों? जस्ट टू कीप आवर एंटायर सिस्टम एंड द बॉडी फिट। सो फॉर इज द नॉलेज इज कंसर्न्ड, देयर आर 4 स्टेजेस, दैट इज आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता एंड दंडनीति। You are all related to Varta, I think, but the ancient book on Varta is not available nowadays. Anvikchiki is available, वो है तर्कशास्त्र। दूसरा है आपका त्रयी, त्रयी इज वेद, ज्ञान कर्म उपासना और विज्ञान, विज्ञान इज द 4th one। और आपका वार्ता एंड दंड नीति इज द स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, धर्मशास्त्र, ऑल दीज आर दंड नीति, दैट इज द लॉ। तो ये है, लेकिन हमने आन्वीक्षिकी से शुरू किया, क्योंकि आन्वीक्षिकी का अर्थ क्या है? द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। यदि आपके पास तार्किक रूप से सोचने का सामर्थ्य है, तो आप त्रयी का निर्माण कर लेंगे। त्रयी का अर्थ क्या है? नॉलेज बैंक दैट वाज क्रिएटेड, एंड वंस यू क्रिएट द नॉलेज बैंक, यू आर एबल टू क्रिएट द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड। संसार के भौतिक संसाधनों को आप बना सकते हैं। Once the wealth is created that needs to be protected by means of the Dandaniti. This was the process of the knowledge that we followed. अष्टादश विद्याओं में है अंगानि वेदास चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर धर्मशास्त्रम पुराणंच विद्याहेताश्च चतुर्वेद। हमने वेदों को बनाया। वेद से जब हम शुरू होते हैं तो उसका अंतिम हिस्सा है उपनिषद। तो अंगानि में उसके 6 अंग हमने बनाए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। तो ये 10 हमने बना लिए, 4 वेद 10। उसके बाद हमने मीमांसा को बनाया, क्योंकि वेद के ऊपर जब क्वेश्चन खड़ा किया गया कि वेदर इट इज एक्चुअली मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी और नॉट, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वैदिक वर्ड्स, वैदिक टेक्स्ट देख लिया आपने, ऋषि से आपने देख लिया, यदि मान लिया ऋषि मंत्रदष्टार देख लिया, तो उसका अर्थ कौन बताएगा? तो हमने मीमांसा को बनाया। मीमांसा वाक्यार्थ विचार है, सेंटेंस को बताने वाला। देन हाउ इवेल्युएट करने के लिए हमने न्याय को बनाया, वो हमारी प्रमाण मीमांसा है। प्रमा है, प्रमेय है, प्रमाता है, प्रमाण है, ये 4 हमारी चीजें हैं। तो उसको हमारे यहाँ कहा जाता है पंचावयव वाक्य। पंचावयव वाक्य के माध्यम से हमने नॉलेज को डिराइव किया, और डिराइव करके उसको फिक्स किया एंड गेव इट टू द ह्यूमैनिटी फॉर इट्स वेलफेयर। दिस इज द एक्चुअल नॉलेज सिस्टम
which is to be practiced nowadays. ययाति की कथा आपने सुनी है कि नहीं? ययाति और शर्मिष्ठा की कथा आप लोगों ने सुनी है? तो उसका अल्टीमेट परिणाम क्या निकलता है बताइए? ययाति और देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी थी शुक्राचार्य की कन्या और शर्मिष्ठा थी वृषपर्वा की कन्या। वृषपर्वा थे राक्षसों के गुरु, और ययाति पर देवयानी आकृष्ट हो जाती है। वो थी ब्राह्मण कन्या और ययाति था क्षत्रिय, तो उसने मना कर दिया कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये मेरे लिए संभव नहीं है, तुम एक ऋषि की कन्या हो। और इधर शुक्राचार्य नाराज हो जाते, वृषपर्वा को और छोड़कर चलने लगते हैं। वृषपर्वा के लिए शुक्राचार्य की उपस्थिति अनिवार्य थी, क्योंकि वो मृत संजीवनी विद्या जानते थे। जब देवता लोग राक्षसों को मार देते थे तो शुक्राचार्य उनको जिंदा कर देते थे। तो जाने लगे, तो वृषपर्वा को लगा कि गए हम, अब तो हमारा सारा सामर्थ्य गया। तो उन्होंने देवयानी और शर्मिष्ठा की लड़ाई में देवयानी ने शर्त रख दी कि शर्मिष्ठा हमारी दासी बन के रहेगी, और यहाँ तक कि विवाह के बाद भी। ययाति से विवाह हो जाता है शुक्राचार्य की अनुमति से, और शर्मिष्ठा दासी बन जाती है। बाद में ययाति शर्मिष्ठा से विवाह कर लेते हैं, तो 2 पुत्र देवयानी से होते हैं और 1 पुत्र शर्मिष्ठा से होता है। जब शर्मिष्ठा से पुत्र की उत्पत्ति होती है तो शुक्राचार्य उसको शाप दे देते हैं कि तूने मेरी पुत्री के साथ धोखा किया, और कह देते हैं कि तुझको वृद्धावस्था मिले। उसके शरीर में ओल्ड एज के जो चिन्ह है वो प्रकट होने लगते हैं। शुक्राचार्य के पास जाता है, प्रार्थना करता है ययाति की कुछ उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा कि यदि तुमको कोई अपनी जवानी दे देगा तो ये वृद्धावस्था रुक जाएगी। वो देवयानी के बच्चों के पास जाता है, दोनों मना कर देते हैं। फिर शर्मिष्ठा के बेटे के पास जाता, उसी का नाम था पुरु, और कहता है, तो वो क्या कहता है कि भाई ये जवानी आप ही की तो दी हुई है, यदि आपके काम आती है तो इससे बड़ा पुण्य क्या है। उसने अपनी जवानी अपने पिता को दे दी। हजारों वर्ष तक ये ययाति भोग में लगा रहा। अंत में उसको समझ में आया कि न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त में व भूये वा विवर्धते। आग में आप जितना घी डालेंगे आग उतनी ही धधकेगी। इसलिए ये इंद्रियों की कामनाएं कभी तृप्त होने वाली नहीं है। पुरु को बुलाता है और पुरु को उसकी जवानी वापस करके वह वैराग्य में चला जाता है। पृथु का वृत्तांत हमारे यहाँ है। पृथु का वृत्तांत दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत फिट बैठता है। पृथु ने पृथ्वी को अपने अधीन किया और पृथ्वी से रत्नों को निकाला। पृथ्वी ने किया क्या था कि यज्ञ की प्रक्रिया समाप्त हो रही थी, क्योंकि मिसयूज ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स हो रहा था बहुत अधिक। तो पृथ्वी ने अपने सारे रत्नों को अपने अंदर केंद्रित कर लिया। संसार में अन्न का अभाव हो गया। पृथ्वी ने कहा मुझे अपनी जनता की रक्षा करनी है। उसने पृथ्वी का पीछा किया। अंत में पृथ्वी ने सरेंडर कर दिया और अपने सारे रत्नों को फिर एक लिमिटेड अमाउंट में पृथ्वी को दिया, जिससे कि सस्टेनेंस बना रहे। तो ये सेल्फ सस्टेनेंस का जो दृष्टांत है, इन कथाओं के माध्यम से, इन वृत्तांतों के माध्यम से, हमारे यहाँ उपाख्यानों आख्यानों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता था। समुद्र मंथन की कथा में सबसे पहले क्या निकला था और सबसे अंत में अमृत। तो ये समझ जाइए कि जब तक आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन विषयों को शांत नहीं करते, आप अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये प्रतीक है हमारे आख्यानों के, जिनके माध्यम से हम समाज को वेलबीइंग की ओर ले जाते रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से कभी भी हम डिविएट नहीं हुए। इसलिए ये प्रश्न आज का है, क्योंकि हम अपने मूल से दूर हो गए। मैं झा जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। संस्कृत का विद्यार्थी हूं, हो सकता है कुछ बातें आपके सामने रखने में समर्थ हुआ हूं। मैं पुनः इस सभा को और सभापति को सबको प्रणाम करता हूं।